Today we are going to continue with chapter number 1. In last class we have already discussed about the meaning, features, bookkeeping and accounting and branches of accounting. If you haven't seen the video, I would request you to pause here and go to the first video. Today we are going to discuss objectives of accounting. So today we are going to discuss the various objectives of accounting. Objectives का मतलब क्या है? Basically what are the motive क्या है behind preparing any such accounting systems? What is the so the first motive और objective behind preparing accounts, क्यों बनाने हमें accounts, उसके पीछे क्या objective है, क्या motive है? First is maintaining accounting records. So the first objective of accounting is to record all the financial transaction and events. हमने last class में पढ़ा था that the process of accounting is identifying, measuring, then recording, then classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating to the users. अब ये जो transactions हमने identify करी हैं, बहुत ज़रूरी है कि उस information को हम record करें in the book of accounts. अब इसे हम record कैसे करेंगे? record करेंगे बहुत ही systematic manner में, plus following the principles of accounting, the rules and regulations of accounting that we are going to study in chapter number 3. Second objective is to determine profit and loss. कंपनी ने over a period of time कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है, वो पता करने के लिए भी कंपनी अकाउंट्स बनाती है, राइट? टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी उसने प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है उसको असर्टेन करती है, राइट? और इस पर्पस के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट, जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट? थर्ड ऑब्जेक्टिव इज to determine the financial position. Okay class, so what is that point? Another objective is to determine the financial position of the company, that we can also determine through the balance sheet. We use balance sheet for doing that. और इस फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिज़नेस की बहुत ही रेलेवेंट है, हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन के लिए दे वांट दैट इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल पोजीशन बनानी बहुत ज़रूरी है. हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि देयर आर वेरियस यूज़र्स, तो उस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं, दैट इज़ प्रोवाइडिंग दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन to the users. There are various users, okay? Internal भी हो सकते हैं आपके और external users भी हो सकते हैं, that we are going to study later, right? So all these users basically require your information और उनको क्या ज़्यादातर चाहिए होता है? आपकी financial position जानना, इसीलिए ये दोनों आपके objectives हैं. और financial position we get to know through the balance sheet. Next point is, fifth point is facilitating the management.
वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरीके से हेल्प करता है अकाउंटिंग किसी भी मैनेजमेंट को असिस्ट करना इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, इन असिस्टिंग decision making, keeping the effective control over the operations and activities in a company, also in budgeting। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हाथ में होगी तो वो देख सकते हैं कि हमें बजटिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड फॉरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए आप प्लान्स बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो कि आगे हम इसे किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। When you are involved in a business, you will tend to purchase a lot of things like machinery, land and building, various other assets. Okay, so when you are going to purchase these assets, you need to protect them, and for protecting them you need to have the proper accounting of it. हमें क्या करना है, हमें records हमारे पास होने चाहिए उन सारे assets के। We should have the record of all those assets which we own, जो हमारे हैं, right? और उसकी रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है, ये रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अनेबल कर देता है ताकि वो उन एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रख सके और उन पे कंट्रोल बना के बैठ सके, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट। ओके, सो दीज ऑल आर योर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज मेंटेनिंग दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और वो रिकॉर्ड्स कैसे बनाएंगे हम, सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। सेकेंड इज डिटरमाइन दी प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज वी आर गोइंग टू डू थ्रू द इंटायर अकाउंटिंग पीरियड बाय असर्टेनिंग दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, which is also called income statement and trading and profit and loss account. Then determine the financial position, और वो कैसे पता लगी कंपनी को, बैलेंस शीट बना के, और वो किसको ज़रूरी होती है, प्रोवाइडिंग इट टू द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द डिफरेंट यूजर्स, एंड दीज यूजर्स कैन बी एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बहुत असिस्ट करता है किन किन चीज़ों में, डिसीजन लेने में, कंट्रोल रखने में, बजटिंग में और फॉरकास्टिंग में। आपके जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, और वो आप, ताकि आप उसका रिकॉर्ड रख सको उन सारे एसेट्स को जो आपकी कंपनी ने ओन कर रखे हैं, बेसिकली टू प्रोटेक्ट एंड हैविंग द कंट्रोल ओवर इट। सो दीज आर ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स। There are various advantages of accounting. Let's see. First one is financial information about business. आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है उसे बताता है, आपको ये बताता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, इन वन अकाउंटिंग पीरियड, वेदर यू हैव मेड अ प्रॉफिट और लॉस। सो इट बेसिकली हेल्प्स यू इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम। सेकेंड पॉइंट इज, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था, इट हेल्प्स एज एन असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, इफ़ेक्टिव कंट्रोल बिठाना होता है, फॉरकास्टिंग, बजटिंग करनी होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज। थर्ड इज़ इट रिप्लेसेस द मेमोरी। भाई एक बिज़नेस में आए दिन बहुत सारे काम होते हैं, सेल, परचेज, इवन स्टेशनरी का छोटा मोटा कुछ सामान खरीदना है, फाइल्स हैं, मीटिंग्स हैं, देयर आर सो मच ऑफ वर्क एंड सो मेनी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन परचेजिंग, सेलिंग, थिंग्स गोइंग ऑन। आप, कोई भी ह्यूमन माइंड इज़ नॉट दैट मच फिट कि वो हर एक चीज़ को मेमोराइज कर सके, तो आपकी मेमोरी को ये बेसिकली रिप्लेस कर देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो योर वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। Next point is it helps in facilitating the comparative study.
अब कंपैरेटिव स्टडी का मतलब बिजनेस कंपेयर कर सकता है कि उसने लास्ट ईयर कैसी परफॉर्मेंस करी थी और अब उसकी वो परफॉर्मेंस कैसी है, जिसको हम बोलते हैं, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. लेट्स से फर्स्ट वन इज इंट्रा फर्म. आप फर्म के अंदर ही अपने बिजनेस को पहचान सकते हो, कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर से और करंट ईयर से. ठीक है. एंड नेक्स्ट काइंड ऑफ आपका हो जाएगा इंटर फर्म. In inter-firm transactions, you will get to know that whether एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को भी कंपेयर आप कर सकते हैं. तो इट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़, चाहे आपको अपने बिजनेस के साथ ही कंपेयर करना हो या किसी और बिजनेस के साथ कंपेयर करना हो. नेक्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स settlement of tax liabilities. अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत ही सिस्टमैटिक वे में रखे हैं तो वो हेल्प करेगा आपके जितने भी इनकम टैक्स एंड जीएसटी लाइबिलिटीज़ हैं उनको सेटल करने में. क्यों? क्योंकि आपका जो रिकॉर्डिंग है ऑफ ऑल द अकाउंटिंग, ये एक बेसिकली बहुत ही अच्छा एविडेंस है, गुड एविडेंस है ऑफ द करेक्टनेस ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट यू हैव डन सो फार. सो इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज. नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स लोन. कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए लोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अब लोन या जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, हाउ डू दे ग्रांट लोन? दे बेसिकली स्टडी कि कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है. वो देखते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, क्योंकि ग्रोथ ही बताता है एक तरीके से कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होगी, राइट? और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से पता लगेगा whether they have the credit worthiness to pay back or not, right? So it is very important know the growth potential which is supported by the performance. तो अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग हेल्प करती है आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल को शो करने में इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज taken as evidence in court. अगर आपके रिकॉर्ड सिस्टमैटिक तरीके से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनाए गए हैं तो ये ऑफन एक्सेप्ट भी किया जाता है एज अ एविडेंस कोर्ट. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ बिजनेस. आप सोच रहे हो बिजनेस बंद करने का, राइट? आप अपना बिजनेस ही किसी और को सेल करना चाहते हो, किसी और पार्टी को, तो आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको कम से कम पता लग जाएगा कि उसका परचेज प्राइस क्या होगा, राइट? सो दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द सेल ऑफ बिजनेस. अदर देन दैट आपकी बुक में और भी ज़्यादा एडवांटेजेस दिए हैं लाइक डिसीजन मेकिंग एंड अदर थिंग्स, बट आई थिंक इफ अ क्वेश्चन कम्स you at least should be knowing 4 to 5 points to answer, right? So we will now go to the next topic, that is limitations. Next topic that we are going to do is limitations. The first limitation is accounting is not fully exact. कह रहे कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रहा है वो एग्जैक्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कभी कभार बिजनेस क्या होता है, कुछ चीज़ों को मानते हुए चलता है, जैसे कि वो ये मान लेता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक मशीनरी है जिससे मैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हूँ. अब वो मशीनरी मैं मान के चलती हूँ कि आने वाले 15 ईयर्स तक मेरे को बेनिफिट देगी और मैं उसी हिसाब से
बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशंस हैं जो मैं कर लेती हूँ, राइट। अब क्या ये इन्फॉर्मेशन जो हम अजम्पशन लगा रहे हैं दैट इट विल हेल्प अस फॉर 15 ईयर्स, ये अजम्पशन ऐसे ही नहीं लगाई जाती, इसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत रिसर्च करी होती है। देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड हु लेट अस नो कि क्या होगा, बट ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से एग्जैक्ट हो हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो 10 ईयर्स तक हो सकता है 20 हो, बट अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फुल्ली एग्जैक्ट हो, वी डू नॉट नो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभार कुछ डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब वो लोग जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो डेटर्स होते हैं, हमें लगता है पता नहीं यार ये फ्यूचर में हमें पैसा दें या ना दें, हमें इन पे डाउट होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोविज़न, एक तरीके से एक गुल्लक कह लो आप, एक छोटा सा बैंक क्रिएट कर लेते हैं और उसमें पैसे डाल देते हैं कि अगर इन्होंने नहीं दिया तो हमारे पास होने चाहिए, तो एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। अब वो हम किस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं वो भी एग्जैक्ट, उसको फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पार्शली हो सकती है बट नॉट फुल्ली। सो दिस वॉज योर topic limitation, that is accounting is not fully exact. Second is unrealistic information. थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स, उसमें से एक प्रिंसिपल है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट विच बेसिकली सेज, जो आपका बिजनेस है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक साल बाद रुक नहीं जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू वर्क एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू डू, ओके। सो बेसिकली बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी फोर्सिबल फ्यूचर। अकॉर्डिंगली हम अपने एसेट्स भी उसी तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे यूजफुल टाइम पे डेप्रिशिएट कर लेते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन टोटली रियलिस्टिक नहीं होती, इसीलिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। थर्ड इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर दीज क्वालिटेटिव एलिमेंट्स? Let's take an example. For example, there are two departments, one is sales department and one is production department. अब ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स मैनेजर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोल देता है कि मुझे सेल्स इंक्रीज चाहिए बाय 20%, जैसे तैसे इस टारगेट को अचीव करो। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है जिसको सब कुछ प्रोड्यूस करना है, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा, राइट। तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को जाके बोलता है कि जितनी कम सेल करो उतना बेटर है, क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल बन ही नहीं रहा, हम आपको टाइमली सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब इससे क्या होगा, दोनों के बीच में क्वारल शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस होगा। नाउ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें किन्हीं भी दो मैनेजर्स की लड़ाई हो गई, क्वेरल हो गया। नाउ दिस इज़ अ क्वालिटेटिव एलिमेंट। अब इस ऐसे एलिमेंट्स को अकाउंटिंग इग्नोर करती है, राइट। कोई ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है और बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है आपकी कंपनी में, इफ़ ही लीव्स द जॉब और ही गेट्स रिटायर्स, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपको पड़ेगा, बट क्योंकि दैट इज़ क्वालिटेटिव, दैट इज़ गोइंग टू नॉट बी रिकॉर्डेड। Some person who is very loyal to your company, but these things are not recorded in accounting. So this is also one of the limitations. Next is accounting may lead to window dressing. Window dressing का मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। एक तरीके से आप अकाउंट्स की हेरा फेरी करो। क्या हो सकता है, आप बहुत सब जितने भी बच्चे हैं फ्यूचर में जाके अकाउंटेंट्स बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं,
डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। अगर आपको पता लग गया अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और आप गलत तरीके से उसकी हेरा फेरी करना शुरू कर दो, फ्रॉड कर दो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पता नहीं है नहीं बताओ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा दो, राइट, आप इन सब चीज़ों के साथ हेरा फेरी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। दिस मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग एज वेल। सो दीज ऑल आर योर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी हम अकाउंटिंग क्रिएट करते हैं उस इंफॉर्मेशन की किन किन लोगों को नीड है। फर्स्ट आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। Let's see who all are the internal users. First, owners of the company. देखो बच्चों, ओनर्स हैं, ये लोग बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और इनको ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं, राइट, दे टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। सो दे वांट टू नो कि कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस में जा रही है। सो दे रियली वांट टू नो दैट व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो। सेकेंड इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं। Now they want to know the accounting information. Why? Because if they'll get to know, they will come to some decisions. फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है, सेलिंग प्राइस क्या रखना है चीज़ों का, किस तरीके से कंट्रोल रखना है, क्या क्या चीज़ों में रिडक्शंस लेके आनी है। अगर दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, है ना, अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। बिकॉज व्हेन यू गेट मनी, और अगर आपका मनी ऐसे आइडल पड़ा रह गया ना, हर बिज़नेस पैसा कमाता है और अगर बिज़नेस में पैसे ऐसे ही खाली पड़ा रह गया, आइडल रह गया, तो उसकी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, दैट वी विल स्टडी फर्दर। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से अवेन्यूज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, एंड कौन सा बेनिफिशियल होगा। देन नेक्स्ट इज़ द एम्प्लॉयज़ एंड द वर्कर्स। ये तीनों इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द employees and the workers. Now these people are working. What they get? They get salary which is fixed. Other than that they get lots of benefits. bonus मिलता है, increments मिलते हैं, है ना, गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इन एम्प्लॉयज़ को। अब ये जो बोनस या इंक्रीमेंट्स है, दिस ऑल डिपेंड्स कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। दिस ऑल इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट दैट इज अर्नड बाय द कंपनी। सो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजिशन, राइट। तो ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। नाउ लेट्स कम टू द एक्सटर्नल यूजर्स, दोज हु आर आउटसाइड the company and want to know the accounting information. कुछ तो आपको पहले से ही पता होगा, जैसे ही मैं लिखती जाऊंगी आपको याद आता जाएगा। फर्स्ट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट लोन फ्रॉम दैट एंड दैट्स वाई दे वॉन्ट टू नो दी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ क्या है, और ग्रोथ से उनको पता लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, एंड थ्रू दैट परफॉर्मेंस ओनली दे विल बी एबल टू प्रोवाइड यू लोन, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू इंश्योर द सेफ्टी। सेकेंड इज इन्वेस्टर्स एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। कुछ तो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं और कुछ हो सकते हैं आने वाले पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो ये जो पैसा इन्वेस्ट करना है ये बड़ा रिस्की मामला है, ठीक है।
तो वो लोगों को भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ताकि वो एनालाइज कर सके क्या रिस्क है, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है और क्या सेफ है पैसा लगाना या नहीं. सो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर देम. देन देर आर क्रेडिटर्स. नाउ हु आर क्रेडिटर्स? दे आर दोज पीपल या दोज पार्टीज जो सप्लाई करते हैं, हमें देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार पे देते हैं हमें. तो ये बिज़नेस की बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है कि ये जितने भी क्रेडिटर्स हैं ये उधार पे देते हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल करते हैं. अब वो ऐसे ही तो नहीं देते, क्रेडिटर्स सैटिस्फाई करते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, राइट, हाउ गुड दे पे बैक, व्हाट इज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी, ऑफ द बिजनेस. और ये उन्हें कहाँ से वो असेस कर पाएंगे, कहाँ से चेक कर पाएंगे? थ्रू दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट इज बैंक्स, सेकेंड इन्वेस्टर्स, थर्ड क्रेडिटर्स. फोर्थ इज योर गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़. गवर्नमेंट को टाइमली चेक करना पड़ता है कि उसकी नेशनल इनकम क्या है, उसके लिए उसको आपके कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की ज़रूरत है जो उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगेगी. अगर उसकी और अथॉरिटीज़ की बात करें जैसे टैक्सेस वगैरह है, राइट, तो जो भी टैक्सेस हैं उससे भी उनको एनालाइज करना है कि कितना पे किया है, करेक्ट है या नहीं. तो उन सब चीज़ों के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड. देन यू हैव सम रिसर्चर्स, दोज पीपल who are out there who need accounting information for some research work. There are consumers जो आपके goods and services को consume करते हैं, they also want to know the accounting information कि जो government ने price set किया है, एक MRP set किया है, क्या वो लोग वैसा दे रहे हैं या नहीं, reduction in prices and to know various other things. Then public, because they are the part of the society, है ना. अब ये जो बिज़नेस काम कर रहा है उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, बैंक्स हैं. ये बिज़नेस क्या कर रहा है? पूरी सोसाइटी की ही मदद ले रहा है, उन्हीं से ही इनपुट ले रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उन्हीं को ही वापस दे रहा है. तो उसमें एक पब्लिक भी आती है. अब ये जो बिज़नेस काम करेगा वो ऐसे ही तो करेगा नहीं, उसे बहुत सारे लोग चाहिए, तो इससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, यहीं से आपको सप्लायर्स भी मिलेंगे. सो पब्लिक इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड टू नो वेदर दे आर मेकिंग द सब्सटैंशियल contribution to the economy, right. So these are all the uses of accounting. So in today's class we have covered the objectives, right, we have covered the advantages, limitations and uses of accounting. Go through these topics. लास्ट क्लास में भी 4 टॉपिक्स कवर हुए थे, आज भी 4, टोटल ऑफ 8. रिवाइज देम and we'll get back to you very soon. Thank you so much.